सकलं विदितारं वेदाश्वेतं चक्रं चरारं दया चरति विसन्तरूपं वेदाश्वेतं चक्रं चरारं दया चरति विसन्तरूपं सर्वदा महेश्वर वायु योगी वर्णाशंकर नमो नमस्ते सुसहस्रलिंगा पुनः योगी नमो नमस्ते सुसहस्रलिंगा पुनः योगी नमो नमस्ते हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही जो मिल सके ना वो फूल हम है तुम्हारी चरणों की धूल हम है जो मिल सके ना वो फूल हम है तुम्हारी चरणों की धूल हम है दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा Assembly, Rekun, Salami, Do. Hands down. अभी फाउंडेशन डे का शुरुआत हम लोग किए हैं फ्लैग होस्टिंग के द्वारा। तो कमिटी का सभी मेंबर्स यहाँ प्रेजेंट है। तो मैं सभी को आज फाउंडेशन डे का शुभकामना देती हूँ। और अभी से हम लोग का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो मैं सभी स्टूडेंट को काइंडली अपना अपना आसन लीजिए हाउस वाइज, और अपना डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, कोई हल्ला मत कीजिए। अभी लाइन करके टीचर आप लोग को हॉल में ले जाएंगे। ओके, थैंक यू। Morning, ভাল আছে। कितना साल बाद आए हो? 40 हो गए क्या? बहुत साल हो गया।
विराट में 45 साल 40-45 साल हो गए एक बार बीच में 1-2 महीने काम पड़ जाता है। आओ लड़का अभी भी है हाँ स्टार्ट हुआ नहीं कभी शाम को 7 बजे ना ना 2 बजे हो गया देखो टाइम स्टेशन में आइए ये बात में रहेगा सर ना ना गलत बात है दिलीप भाई गरम बाद में ले जाता बुलाया मैं आपको बुलाया साहब क्या करो बस आपकी दुआ है। अरे आपको बुलाया तो आने बनाया हाँ आप बुलाए हम ना आए। May I request all the students and the respected guests to please be seated on the chair. I am really privileged to have the pleasant task of welcoming the distinguished gathering for our school's 67th foundation. It's now time to invite our special dignitaries of today's function to come onto the dais and occupy the distinguished chair. Sri N.C. Kannani ji has readily accepted to chair today's session. His presence is always a moral boost for all of us. So may I request sir to please have a seat on the dais. Listen to your motivational words, sir. And may I now request Sri Kamal Dalmia ji to please welcome our president of today's function with a full-arm gamcha. Thank you, Kamal Bhaiya. Opportunity to welcome our secretary, Sri Sushil Kumar Kalani ji, chartered accountant by profession. His energy, his aggression, his vision, his passion for education are all visible with the development and the progress of the school, which has delivered in the last 3 to 4 years. Needless to say, the school has achieved its 100% class 10 result in the session 2023-24. Please have your seat on the dais, sir. The backbone of our school management team, the inspiring lady with the indomitable spirit to maintain the discipline, the motivational soul moving around the campus. May I now call upon the stage Mrs. Monwara Begum, School Head of Rashtrabhasha Vidyalaya, to please have a seat on the dais. The chief guest for our today's function joined ACS in the year 1983, IAS of the year 2000 batch. He has served as SDO Civil in Mankachar, ADC at Dubri, Bongaigaon and Sivsagar, MD of Assam State Transport Corporation, Deputy Commissioner at Kamrup Metro and Jorhat City, Commissioner Secretary to the Government in Education Tourism Department, and is presently the Chairman of Board of Secondary Education SEBA and Chairman of Fee Regulatory Committee Assam, with qualification of Bachelor of Commerce and Bachelor of Legislative Law. And may I request Sri Kamal Dalmia sir, our committee member, to please escort the sir to the dais. We welcome you, sir, and please have your seat on the dais. Ladies and gentlemen, we are about to commence our event by lighting of the lamp of knowledge and wisdom. This is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and igniting of thought and enlightenment. It's an honor to invite our chief guest, Sri R.C. Jain sir, with all the President sir and Secretary sir, and बोर्डलेस माइक असेल बोर्डलेस असेल
You may start the school song, please. ज्योति सीखा सतत जलाकर, ज्योति सीखा सतत जलाकर, अज्ञान अंधेरा रखे मिटाकर, अज्ञान अंधेरा रखे मिटाकर, ज्ञान ही सत्य ज्ञान ही सुंदर, ज्ञान ही सत्य ज्ञान ही सुंदर, ज्ञान की चर्चा करते रहे अविराम, ज्ञान की चर्चा करते रहे अविराम। शिक्षा जग में गूंज उठेगा, शिक्षा जग में गूंज उठेगा, इस वाणी मंदिर का नाम, इस वाणी मंदिर का नाम। राष्ट्रभाषा विद्यालय, राष्ट्रभाषा विद्यालय, अपना लक्ष्य है अति महान, अपना लक्ष्य है अति महान, ज्ञान विज्ञान और जन कल्याण, ज्ञान विज्ञान और जन कल्याण, मातृभूमि की महान संस्कृति, मातृभूमि की महान संस्कृति, नित्य कर्म से इसको करे प्रणाम, नित्य कर्म से इसको करे प्रणाम। शिक्षा जग में गूंज उठेगा, शिक्षा जग में गूंज उठेगा, इस वाणी मंदिर का नाम, इस वाणी मंदिर का नाम। राष्ट्रभाषा विद्यालय, राष्ट्रभाषा विद्यालय, राष्ट्रभाषा विद्यालय।
please. Thank you. So, may I request Sri Ashok Malpani ji and Sri Pramod Singhania sir to please felicitate our chief guest of the session, Sri R.C. Jain sir, with a full arm gamcha and a memento as a token of love. May I now request words as always. Kanam. राष्ट्रभाषा विद्यालय के श्री रमेश चंद्र जैन, चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, प्रिंसिपल राष्ट्रभाषा विद्यालय, सेक्रेटरी राष्ट्रभाषा विद्यालय सुशील, जॉइंट सेक्रेटरी आई थिंक मास्टर ऑफ सर्मनी सूर्य गट्टानी, अतिथिगण, भूतपूर्व छात्र, अध्यापक, विद्यार्थी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपका सभी का इस 77वें स्थापना दिवस में स्वागत है। जब भाई सुशील और माखन मेरे को बुलाने आए तो मैंने ये सोचा कि मेरे को इंग्लिश में बोलना है ना हिंदी में बोलना है। मैंने सोचा शायद मैं हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोल सकूं, हिंदी में थोड़ा वो फ्लुएंट नहीं रहा, परंतु राष्ट्रभाषा विद्यालय का फंक्शन है तो मेरे को हिंदी में ही बोलना चाहिए। थोड़ा मेरा उसको अच्छा नहीं लगा, फ्रेंकली कहता हूं कि यार जब कार्यक्रम की सूची जो स्टार्ट हुई वो अंग्रेजी में चालू हुई, क्योंकि हमारे फोर फादर्स ने सन 1957 या 58 में जब इस विद्यालय की स्थापना की गई थी, उसका मेन उद्देश्य था हिंदी का प्रचार और प्रसार, और दूसरा ये था कि बहुत से वो परिवार है हमारे यहाँ रहते जो राष्ट्र में ऐसा था कि काफी परिवार ऐसे थे जो अपने बेटे बेटियों की हिंदी में शिक्षा नहीं होने के कारण उनको राजस्थान में रखते थे और यहाँ पर 12 महीना 15 महीने रहते थे, 3 महीने 4 महीने छुट्टी में चले जाते थे। उस समस्या को समाधान करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में सिर्फ वही जो थे वो मास्टर की स्कूल से राजस्थान में पढ़ के आए थे, तो उनकी सोच कितनी अच्छी थी। उनकी ये सोच थी कि राष्ट्रभाषा विद्यालय बना, और उस समय देखिए राष्ट्रभाषा विद्यालय बनाने के लिए खाली अपने समाज का ही नहीं था, उस समय जितने भी कांग्रेसी लीडर हुआ करते थे, फ्रीडम फाइटर की और पार्टियां नहीं थी, सारे समाज के लोग के आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हिंदी का प्रचार एवं प्रसार होना चाहिए। अगर आप साइड बोर्ड में देखेंगे तो आसामी लोगों का डोनेशन भी है वहां पर, इस स्कूल में आसामी लोगों का भी डोनेशन है। तो ये इसका मुद्दे में एक उद्देश्य जो था हिंदी में शिक्षा देना, हिंदी में प्रचार प्रसार करना। अच्छा है आज 67 वर्ष से ये स्कूल अच्छे से चल रही है। इस हॉल में आकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बहुत ही खुशी हुई। क्यों खुशी हुई कि इस हॉल के स्थापना फाउंडेशन स्टोन 68 में दिया गया था, तब आजकल जी जाना सेक्रेटरी हुआ करते थे, मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, और बिमला प्रसाद छलिया ने इसकी फाउंडेशन दी। आप लोग शायद देखते हैं आज जैसा है या यह है राष्ट्रभाषा का कहानी। देखिए स्कूल चलाने में दानदाताओं ने बिल्डिंग तो बना दी, स्कूल चलाने में बड़ी मुश्किल हुआ करती थी हम लोगों ने। शायद आज दानदाताओं से या भूतपूर्व छात्रों के सहयोग से आज ये इस हॉल को या बिल्डिंग को देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो आपको मैं 68 की टाइम की बात बताता हूँ।
हमको इस स्कूल को चलाने के लिए लॉटरी करनी पड़ी, रेफर टिकट। हमने एक बड़ी रेफर की और आपको सुनकर के खुशी होगी, आजकल जी दलाल कितने अच्छे कार्यकर्ता थे। 5000 टिकट हमने प्रिंट की। हमने कहा टिकट जो है टिकट सिग्नेचर टिकट में ही करा लेते हैं। भाई जी ने कहा नहीं, कोई डुप्लीकेट ले लेगा तो मैंने कहा साइन कौन करेगा, मैं करूंगा। 5000 टिकटें हम जैसे बेच निकलते उसके पहले 50 फुट 100 फुट आसपास की रात को बैठ के साइन करके मेरे को दे देते। ये थी उनकी लगन। तो आज मैं इस स्कूल का जो विकास देख रहा हूं, देख करके मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है। शायद इसमें विशेषकर ये अच्छा लगा कि इसके भूतपूर्व छात्र जो है वो इसमें काफी सहयोग कर रहे हैं। वो दे फील प्राउड टू बी प्रोडक्ट ऑफ राष्ट्रभाषा विद्यालय। वो अच्छे बिजनेसमैन हो गए, अच्छे दो तीन अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। मेरा स्टूडेंट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है इसी स्कूल का प्रोडक्ट है, आज मैंने जाना। तो जान करके आप लोगों का अच्छा लगा कि आप इसमें सब सहयोग कर रहे हैं। आगे बड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि अपने समाज में दानदाता लोग दान को दे देते थे, परंतु डे टू डे चंदा देने में बहुत घबराते। सेकेंडली, अगर एक भी पैसा हम फीस बढ़ाते, 1 रुपए भी, तो समाज में हल्ला हो जाता है कि ये तो कमर्शियल हो गई, क्योंकि उसमें लोगों की इतनी कैपेसिटी भी नहीं। परंतु उन मुसीबतों के साथ भी जो भी कमेटी आगे आई, जिन्होंने इस स्कूल को बचा के रखा और इस स्कूल के साथ साथ एक और नई स्कूल बनाई इंग्लिश मीडियम की, तो ये सुनकर मैं आज बहुत ही खुश हो रहा हूँ, मैं बहुत ही प्रसन्न हो रहा हूँ। मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आपने इतनी राष्ट्रभाषा की उन्नति की। मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, तो अच्छा ये है कि अक्षरों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक अच्छे प्रोडक्ट नहीं निकलेंगे विद्यालय से, खाली बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा। आप लोगों में से कई आदमी होंगे जिनको एक्सपीरियंस होगा, सीकेबी कॉमर्स कॉलेज की जो बिल्डिंग चालू की थी माधव चक्रवर्ती ने, वो टीन के छपरे में चालू की थी, तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे निकले कॉलेज के। उसी तरह मैं चाहता हूं कि जो भी है हम ये कोशिश करें कि हम विद्यार्थी लोगों का ज्यादा से ज्यादा उनकी तरफ ध्यान दें। मैं विद्यार्थी लोगों से, जो विद्यार्थी यहाँ पर है, उनको मैं एक शिक्षा देना चाहूंगा कि वो आत्मविश्वास रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं। अगर आप लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप विद्यार्थी लोग, अगर कोई भी विद्यार्थी ये सोच लेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं होगा, मेरे से ये पढ़ाई नहीं होगी, तो कभी नहीं होगी। आप ये हमेशा सोचो कि आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, आप हर चीज में सक्सेस हो सकते हो। पहले अपने पर विश्वास रखो। अब जब तक आप अपने पर विश्वास नहीं रखोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। इसीलिए मेरे विद्यार्थी लोगों की ये शिक्षा है कि आप ज्यादा से ज्यादा ये मन में हमेशा सोचे, आई कैन डू इट। बोलो सब, आज विद्यार्थी आगे से आप कुछ कर नहीं सकोगे। आप अगर आप में ये विश्वास है कि मैं ये पढ़ाई करने सकूंगा, मैं ये स्पोर्ट्स में अव्वल आने सकूंगा, आप जरूर ये कर सकोगे। सेकेंडली, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आजकल विद्यार्थी लोगों को नॉलेज जो है वो नॉलेज गूगल के थ्रू होता है। कोई भी चीज किसी को पूछते हैं तो वो गूगल से निकाल लेते हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, गूगल का जो नॉलेज है वो पूरा नॉलेज नहीं है। कृपया अपनी हैबिट करें कि आप किताबों से नॉलेज लें, अच्छी किताबें पढ़ें, तो आपके लिए जिंदगी में कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। अध्यापकों से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया विद्यार्थी लोगों को कहें कम से कम यूज करें इस इंस्ट्रूमेंट का।
ये जो इंस्ट्रूमेंट है अपना मोबाइल, इट इज ए सर्जन्स नाइफ। एक डॉक्टर का जो चाकू है वो 2 काम कर सकता है, वो आपको ऑपरेशन करके ठीक भी कर सकता है, आपका गला भी काट सकता है। चाकू का फंक्शन दोनों कर सकता है वो डॉक्टर, परंतु उसको अच्छे काम के लिए यूज करते हैं। तो मेरी अध्यापक लोगों से यही प्रार्थना है कि कम से कम वो ये विद्यार्थी लोगों को कम से कम मोबाइल यूज करने का दें, कम से कम स्कूल में मोबाइल बंद कर दें, और उनको घर में भी कहे कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। जो गार्जियन लोग यहाँ पर है उनको बहुत बार शिकायत होती है, अपने बच्चे से शिकायत होती है कि मास्टर जी ने मेरे को ये कहा, मास्टर जी ने मेरे को यार, वो आ जाते हैं स्कूल में शिकायत करने। तो मेरे गार्जियन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम पहले बच्चे की बात सुनने से पहले अगर मास्टर ने उसको एक बैंक मार दिया है तो भी उसकी बात पर मत जाओ, उससे पहले वो मास्टर जी से, उनका जो अध्यापक है वो ही उनको अच्छा स्टूडेंट बना सकते हैं, उनसे पूछिए किस लिए ये दंड दिया। बहुत बार आजकल हम ऐसा देखते हैं कि गार्जियन जैसे ही बच्चे ने कहा कि मास्टर ने आज मेरे को थप्पड़ मार दिया तो सीधे चले आते हैं। ये भी गार्जियन लोगों के लिए अच्छी चीज नहीं है। हो सकता है अध्यापक की भूल हो, पर तो उसने किया है अच्छे के लिए, तो गार्जियन लोगों से यही रिक्वेस्ट है। और अंत में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप इस सभा है, खासकर भूतपूर्व छात्रों को देख करके आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ये भूतपूर्व छात्र जो 71 और 79 बैच के जो है उनको कोई देख के खुशी हो रही है, और जो उसके पहले वाले बैच भी थे जिन्होंने इस राष्ट्रीय भाषा को यह दृश्य दिया, आज इस होल को देख करके मैं प्राउड फील कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन नहीं करते तो यह होल ऐसा नहीं होता। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, हमारे अतिथिगण जो आए हैं उनका स्वागत कर रहा हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्रभाषा, शायद सुशील ने मेरे को कहा लिख के कि आप इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जरा सोचिएगा। मैं इंग्लिश के अगेंस्ट में नहीं हूं। अगर हिंदी इस तरह लुप्त होती गई, कहीं मैंने पढ़ा था कि हिंदी का साहित्य तो बहुत हो रहा है, छप रहा है, पर पढ़ने वालों की कमी हो रही है। आज अपनी जो लाइब्रेरी है, हिंदी की लाइब्रेरी, कोई उसका यूज नहीं करता। आप अगर जरूरी है इसको इंग्लिश मीडियम में करना, तो भी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम जो हिंदी का पेपर है वो कंपल्सरी होना चाहिए। एटलीस्ट उसमें जब राष्ट्रभाषा विद्यालय है, कम से कम स्टूडेंट को वो हिंदी में अगर पास नहीं करेगा तो पास नहीं माना जाएगा। ये कम से कम आप करिए, मेरा सजेशन है, क्योंकि इसमें बड़े इकोनॉमिक रीजन है स्कूल को चलाने के लिए। हिंदी में रखे या इंग्लिश में रखे, मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता, ये कमेटी का काम। हमारे फोर फादर्स ने इसको हिंदी के लिए स्कूल को बनाया था, हिंदी भाषा के लिए बनाया था। आज नहीं तो कल में तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, राजभाषा नहीं हो सकती, वो तो राष्ट्रभाषा हो सकती है। तो इसको अगर हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे, अगर हम ही लोग इसको नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। तो कृपया मेरी कमेटी से ये प्रार्थना है कि कम से कम हिंदी की प्रायोरिटी रहे।